Very good morning, student. I am Professor Jasmine Faras. Again, welcome you on my channel. Today we'll see 11th evaluation scheme as per new syllabus. Last year ही syllabus change हो चुका है हमारा 11th का, तो evaluation pattern भी change हुआ है. So let's see. This is evaluation scheme. आपके पास first unit test होगी, then terminal, then we have a second unit test, then we are taking internal test, that is a application based test, and finally is a final exam, that is a annual. So unit test you are having a 25 marks, terminal you are having a 50 marks, then again we have a unit test after Diwali, most probably after Diwali it's 25. Then we'll take internal marks for a 20 marks, that will be objective based, and finally we have a final exam. So total we have a 200 marks, and out of that you should get minimum marks. Okay, now we'll see the next. Now what will be the unit test 1 and 2? Unit test 1 of 20 marks should be conducted in first term, and of course 25 marks second unit test will be conducted after second term, that means after Diwali. Then unit test question paper should not only be based on the objective, so just remember that here you have to solve some problem also. This will not based only on a objective. ठीक है, यहाँ पे आपको इक्वेशन सॉल्व होगा, देन मे बी अगर आपको जर्नल एंट्री सिखाई होगी तो जर्नल एंट्री होगा, या टैबुलर फॉर्म में आपको एनालिस करना होगा. सो ये यूनिट टेस्ट में होगा. वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चन इन द एक्सरसाइज ऑफ टेक्स्ट बुक. सी हियर आपको ज्यादा फोकस किस पे देना है, टेक्स्ट बुक पे देना है, जो गवर्नमेंट का टेक्स्ट बुक है. बस उसके पीछे उन्होंने सब एक्सरसाइज मेंशन की है अच्छे से, एंड दैट शुड बी a consider for a unit test. And time allot is for 130 minutes, 1 hour 30 minutes. 1.5 घंटे का पेपर होगा, 25 मार्क का पेपर होगा, और ऑब्जेक्टिव बेस एज वेल एज आपका नॉन ऑब्जेक्टिव बेस क्वेश्चंस होंगे. तो आप इसके लिए सिर्फ आपका टेक्स्ट बुक रेफर करोगे तो भी आपका काम बन जाएगा. ओके, नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट. टर्मिनल एग्जाम, दिस इज टू बी बिफोर दिवाली, प्रोबेबली दिवाली के पहले होता है, बट नाउ डेज वी डोंट नो, वी कांट से एनीथिंग कि आप कॉलेज ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे लेगा. सो कब होगी ये हम साइड में रखते हैं. विल सी ओनली नाउ डिस्क्रिप्शन अबाउट टर्मिनल एग्जामिनेशन. दिस इज द फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन एंड हैविंग अ 50 मार्क्स. जैसे यूनिट टेस्ट 25 मार्क्स की थी, वैसे फर्स्ट टर्म हमारी होगी 50 मार्क्स की, एंड ऑफ कोर्स उसके लिए टाइम होगा आपको 2.5, दैट मीन्स 230 minutes. Then terminal exam should be based on the 50% of portion. So it is to be assumed that कि before Diwali आपका 50% syllabus पूरा होगा. ठीक है, but nowadays अभी के situation में we can't tell anything. This is a just overall paper pattern which is to be going to continue next to next year also. Okay, so we'll move to the next. Now how question paper pattern will be there. Terminal exam total 50 marks, as I told you, 2.5 hour will be there. Now pay attention, this is the most important question. Number 1, answer the following as directed. Here you have to just write, do you agree with the following statement? So you have to write yes I agree, or yes I do not agree with the following statement. So you will get here 1 mark. So 5 questions will be there, and each questions will be having a 1 mark. So ये बुक के पीछे दिया है, आंसर के साथ दिया है, तो आप इसकी प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए. Then answer in one sentence. Here you have to write only one sentence. एक लाइन में आंसर लिखना है, जैसे कि स्पेशली चैप्टर 1, what is the debtors, what are the liabilities, what are the assets, what is called capital. This all will comes in this section. Now we'll move to the next. Select the most appropriate answer and given below and rewrite. Focus here, rewrite. आपको जो भी यहाँ पे ऑप्शंस दिया होगा, करेक्ट ऑप्शन आपको ढूंढना है, और फिर से आपको वो पूरा रीराइट द सेंटेंस करना है. ओके, फॉर एग्जाम्पल डैश इज अ इंटेंजिबल असेट. सो यहाँ पे आंसर रहेगा गुडविल. सो यू हैव टू अगेन राइट गुडविल इज अ इंटेंजिबल असेट. Okay, now again 5 questions will be asked, and each question having a 1 mark. सो ऑब्जेक्टिव बेस्ड सी स्टार्टिंग ऑब्जेक्टिव है, तो 15 मार्क्स का हमने जो देखा प्रीवियसली, देखो यहाँ पे ये 5 मार्क्स, देन दिस वन 5 मार्क्स, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 5 मार्क्स. तो 15 मार्क्स तो आपको सिर्फ टेक्स्ट बुक के पीछे की अब एक्सरसाइज सॉल्व करोगे तो यू विल गेट इजीली. नाउ विल मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2, गिव अकाउंटिंग इक्वेशन. अगर आपने मेरे सब वीडियो देखे होंगे तो मैंने एक वीडियो आपका इक्वेशन का भी
पुट किया है। अगर नहीं हुआ है तो 1-2 दिन में मैं अपलोड कर दूंगी। सो यहाँ पे आपको इक्वेशन लिखना है। मिस पूछेगी ये इक्वेशन क्या आएगा और आपको सॉल्व करना है। ये भी टेक्स्ट बुक में अच्छे से सॉल्व करके दिया है। ये लेसन नंबर सेकेंड में आपको अवेलेबल होगा, ठीक है। सो अगेन 5 marks is there. Then the main part begins. क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड द 5। यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना है। मे बी शायद अभी आपको समझ में नहीं आएगा कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कैसे होते हैं। अगर आपने चैप्टर 3 ओपन किया, चैप्टर 4 ओपन किया, तो आप सिर्फ देख सकते हो कि उसका फॉर्मेट क्या होता है। सो इस तरह से वो एक प्रॉब्लम हो गए, 10-10 मार्क्स के हो गए। डोंट वरी, बहुत ही इजी चैप्टर है और उसके वीडियोस भी मैं जल्द ही अपलोड करने वाली हूँ। सो ये भी मार्किंग के लिए आपको बहुत अच्छा स्कोप है, स्पेशली जर्नल एंड लेजर। एंड फाइनली क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन टू बी आस्क्ड, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन सब्सिडरी बुक्स। तो यहाँ पे आपको फिलहाल सब्सिडरी बुक में बहुत सारे बुक्स अवेलेबल है, बट फिलहाल आपको फर्स्ट टर्म में से परचेज बुक रहेगा, सेल्स बुक रहेगा एंड रिटर्न्स बुक रहेगा। ये भी बहुत इजी है। तो आपका फर्स्ट यूनिट टेस्ट एंड फर्स्ट टर्म्स विल बी इजी, बट इजी कब होगा, जब आप टेक्स्ट बुक के पीछे के हर एक्सरसाइज सॉल्व करोगे। ओके, नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट। एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट, जैसे कि मैंने कहा था इंटरनल मार्क्स, ये इंटरनल मार्क्स कॉलेज लेता है, कंडक्ट करता है। इसके पहले प्रोजेक्ट थे, दैट नीड्स टू सबमिट टू द सब्जेक्ट टीचर, लेकिन अब उस प्रोजेक्ट्स उन्होंने कैंसिल कर दिए है। उसके जगह पे ये छोटी सी एक टेस्ट रखी है, 1 घंटे की टेस्ट है। ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड टेस्ट होगी। अगेन हियर यू हैव टू राइट डू यू एग्री और डिसएग्री विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देन अगेन करेक्ट ऑप्शन आपको चॉइस मिलेगी, उसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है, अगेन रीराइट करना है। देन गिव वन वर्ड, the person who put the or who invested the money is called dash. So what we can call that, we have to write. And finally question number 2, ये आपको स्पेसिमन होगा, ये चैप्टर नंबर 2 में दिया है। नाउ स्पेसिमन मतलब सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, मतलब मे बी टीचर आपको पूछेगी कि ब्लैंक चेक का एक फॉर्मेट ड्रॉ करो, या क्रॉस चेक का फॉर्मेट ड्रॉ करो, या रेवेन्यू रिसीट ड्रॉ करो, सेल्स रिसीट ड्रॉ करो। सो ये एवरीथिंग इज गिवन इन चैप्टर 2। सो आपको एनी 1 out of 3 मीन्स आपको चॉइस होगी। यहाँ पे यहाँ टीचर्स आपको 3 फॉर्मेट देंगे, बस उसमें से कोई भी आपका मनपसंद आपको एक सिलेक्ट करना है एंड यू विल गेट 5 मार्क्स। इट्स ऑल्सो वेरी इजी। तो अगर आप नोटिस करोगे तो 25 मार्क्स की यूनिट टेस्ट प्लस 50 मार्क्स की टर्म एंड प्लस ये 20 मार्क्स का इंटरनल। सो सी 95 मार्क्स, तो टोटल 200 में से, जैसे मैंने पहले ही देखो स्लाइड में बताया है, टोटल आपकी फर्स्ट यूनिट टेस्ट, सेकेंड यूनिट टेस्ट, फर्स्ट टर्म एंड फाइनल एग्जाम, ये मिला के आपके 200 मार्क्स हो गए। उसमें से 95 मार्क्स मिलाना बहुत ही आसान है, बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा है ये पेपर पैटर्न। चाहिए तो स्क्रीनशॉट निकाल कर लो, या अगर आप बुक में नोटबुक में नोट करना चाहते हो तो कर लो। ना एप्लीकेशन बेस्ड कैसी होगी, ये एक्चुअली टीचर के लिए है कि कंडक्टेड फॉर इंटरनल असेसमेंट। दिस ऑल इंस्ट्रक्शन इज गिवन फॉर द स्पेशली टीचर्स, तो बच्चों को जरूरत नहीं है, बट फिर भी आप पढ़ सकते हो। ये एप्लीकेशन बेस्ड जो होगी ये एंटायर सिलेबस के लिए होगी। तो ये पूरा ऑफकोर्स ये हम जो इंटरनल टेस्ट लेंगे ये आफ्टर जैन फेब में लेंगे। सो डेफिनेटली ऑलमोस्ट हमारा सिलेबस तब तक फिनिश हो चुका होगा, एटलीस्ट 90%। सो उस पे पूरे एंटायर सिलेबस पे होगी। टाइम ऑफ कोर्स यहाँ पे 1 घंटा ही मिलेगा आपको। ऑब्जेक्टिव है, यू हैव टू जस्ट सिलेक्ट द आंसर। क्वेश्चन पेपर इज टू बी फ्रेम इन सच वे दैट स्टूडेंट विल एबल टू राइट द आंसर। सेम शीट, तो आपको ये एक ही पेपर होगा। जैसे अगर आपको याद होगा फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकंड स्टैंडर्ड में देखो मिस क्वेश्चन देती थी और नीचे ही आंसर हमें लिखना होता था, बस वही टाइप का होगा। एंड डोंट वरी, हर लेवल पे आपकी मिस आपको ये एक्सप्लेन करेगी, सो डोंट वरी। एंड इट शुड बी कंडक्टेड, जैसे मैंने कहा कि फरवरी मार्च अप्रैल में, कभी भी डिपेंड ऑन द सिलेबस। सिलेबस अगर 95 से लेके 100% तक फिनिश हो गया है तो हर कॉलेज डिसाइड करेंगे एंड अकॉर्डिंग टू दैट ये 3 महीने में से कोई भी एक कॉलेज में, देखो रिस्पेक्टिव कॉलेज इज गिवन, तो आपकी इसकी हर नोटिस आपको कॉलेज से दी जाएगी। ओके, नाउ ये एनुअल क्वेश्चन पेपर पैटर्न है। ये अगर अभी मैं आपको सिखाऊंगी तो आपको नहीं समझ में आएगा कि कौन से क्वेश्चंस को कितने मार्क्स है, विद ऑप्शन एंड विदाउट ऑप्शन। तो ये फिलहाल सिर्फ आप लिख कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। जैसे ही आप यूनिट टेस्ट 1,
देन टर्म 1 एंड द यूनिट टेस्ट 2 आप फिनिश करोगे तो आपको आहिस्ता आहिस्ता ये समझ में आ जाएगा। एंड एवरीथिंग इज गिवन इन टेक्स्ट बुक, ये हर तरीके का क्वेश्चन इन्होंने टेक्स्ट बुक में दिया है। तो आपको ये मिस नहीं करना है, आपको ये सब कुछ करना है। फाइनल एग्जाम में 20 मार्क्स आपको ऑब्जेक्टिव है। ओके, जैसे टर्म में आपको 15 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव था टर्म फर्स्ट टर्म एग्जाम में, तो वैसे फाइनल एग्जाम में आपको 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव होंगे और इसमें से ही पूछे जाएंगे। देखो एनी 4 विल बी आस्क्ड, तो इट डिपेंड्स ऑन कॉलेज टू कॉलेज, टीचर टू टीचर, बट ये आप स्किप नहीं करोगे, ये आप अच्छे से करोगे। ओके, नाउ दिस इज ऑल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कि आपको जर्नल पूछा जाएगा, सब्सिडरी पूछा जाएगा, टू प्रॉब्लम्स विल बी आस्क्ड, आपको टू चॉइस होगी लेकिन आपको देखो एक ही कुछ तो करना है। सेम ईयर क्वेश्चन नंबर 3, आपको 3 चॉइस है बट इसमें से आपको सिर्फ एक ही करना है। देखो आपके पास कितनी चॉइस है, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो सेम क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। सो ये सब आप सिर्फ अभी फिलहाल स्क्रीनशॉट निकालो या नोटबुक में नोट करके रखो। ये जैसे जैसे चैप्टर टीचर्स आपको पढ़ाएगी देन ओनली यू विल कम टू नो कि ये पेटी कैच क्या है, देन सब्सिडरी बुक क्या है, जर्नल क्या है। सो डोंट वरी, डोंट टेक टेंशन, ये फिलहाल सिर्फ आप सेव करके रखो स्लाइड। ओके, नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट। एनुअल एग्जामिनेशन पैटर्न, ऑफ कोर्स दैट विल बी 80 मार्क्स, क्योंकि 20 मार्क्स इसमें जो ऐड होंगे वो आपके इंटरनल मार्क्स होंगे जो मैंने अभी बताया है, ऑब्जेक्टिव बेस्ड होंगे, एप्लीकेशन बेस्ड होंगे। एंड ऑफ कोर्स फाइनल एग्जाम तो हमारी 3 आवर्स की होती है, एंटायर सिलेबस पे होती है। एंड ऑफ कोर्स ये दिस नोटिफिकेशन इज फॉर टीचर्स। टीचर्स ये हर वेटेज जैसे यूनिट वाइज वेटेज दिया है उस हिसाब से पेपर फॉर्मेट करेगी। ओके, सो दिस इज फॉर टीचर। डिवीजन ऑफ मार्क्स, ऑफ कोर्स फाइनल है तो 20 मार्क्स ऑब्जेक्टिव हो गए एंड 60 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन हो गए, तो आपका टोटल फाइनल एनुअल एग्जाम होगा 80 मार्क्स का। मतलब आप अगर सिलेबस लेते हो तो 75% आएगा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, ठीक है, और 25% आएगा ऑब्जेक्टिव। तो आपको बहुत अच्छा स्कोप है, आप प्लीज कोई भी चैप्टर ऑब्जेक्टिव का स्किप मत करो। ओके, दिस इज यूनिट वाइज वेटेज, ये आपकी हर टीचर आपको दे देगी। यूनिट वाइज वेटेज कैसे है, ये पहला चैप्टर है जिसको ऑब्जेक्टिव 2 है और विथ ऑप्शन भी, तो ये पहला चैप्टर जो है वो 2 मार्क्स का है। ओके, देन सेकेंड चैप्टर अगेन 2 मार्क्स, देन लेजर वी हैव अ 20 मार्क्स, देन chapter 4 16 marks, depreciation 12 marks. Okay, then final account, and finally this is most important chapter, ठीक है। तो ये आपको सब कंसिडर करना है, ये सब आपके चैप्टर है। अगर टोटल यू हैव अ 6 चैप्टर, तो अगर आपने टेक्स्ट बुक खरीदा होगा तो टेक्स्ट बुक में देखो 6 चैप्टर है और हर चैप्टर के सामने आप ये लिखो प्रॉब्लम्स कितने मार्क्स के आएंगे और ऑब्जेक्टिव कितने आएंगे। तो अगर आपने नोटिस किया होगा, सो देखो ज्यादा ऑब्जेक्टिव ये चैप्टर पे है, ये बेस पे है, ठीक है। तो आपको ज्यादा ऑब्जेक्टिव किस पे ध्यान देना है, ये चैप्टर पे आपको ज्यादा फोकस करना है बिकॉज ऑब्जेक्टिव इस पे है। देन 6 मार्क्स का, तो ये भी इस पे भी थोड़ा आपको ध्यान देना होगा। बाकी में 2-2 मार्क्स का उन्होंने ऑब्जेक्टिव पूछा है और इस तरह से 60 प्रैक्टिकल एंड 20 ऑब्जेक्टिव, यू विल गेट 80 मार्क्स। ये ऑप्शनल विथ ऑप्शन है, जैसे आप पेपर पैटर्न मैंने अभी यहाँ पे बताया कि कैसे पेपर आएगा। सी यार इसको, ये तीनों में आपको एक लिखना है, ये तीनों में एक लिखना है, ये तीनों में एक लिखना है, सो वैसे उन्होंने दिया है, ठीक है। सो बेसिकली आपको 60 + 20 80 मार्क्स कवर करने हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच। अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, अगर आप नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि नोटिफिकेशन आना जरूरी है और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करना जरूरी है। फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए क्योंकि अगर आपको बेस ही नहीं समझेगा, पेपर पैटर्न ही नहीं समझेगा तो आप पढ़ाई स्टार्ट कैसे करोगे। ओके, सो प्लीज शेयर विद फ्रेंड्स ऑल्सो। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।